Hi everyone, welcome back to the channel. In RBI Grade B Phase 2 exam, if there is one subject which is the most difficult and least scoring, that has to be ESI, Economic and Social Issues. ESI के पेपर में अगर आप 65 या फिर 60 प्लस भी टारगेट करते हैं, I would say that's a good score. 65 kind of score would give you a definitive edge as compared to your competitors. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस स्कोर को टारगेट कर सकते हैं, दैट टू विद अ स्पेसिफिक स्टडी प्लान और इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। ईएसआई में अगर अच्छा स्कोर करना है, सबसे पहले आपको ये दो चीजें समझनी पड़ेंगी, दैट रीडिंग न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। आई टेल यू व्हाई इन द अपकमिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। बट अब न्यूज़पेपर में, व्हेन आई से रीडिंग न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर में यू मस्ट बी रीडिंग एडिटोरियल्स ऑन डेली बेसिस और मे बी थ्राइस अ वीक, बट दैट इज समथिंग which is very very important. Next is past year papers. Past year paper is just to help you understand the pattern so that you can understand the weightage of different areas and type of questions being asked. Though I would also be telling you the same thing in this video, but when you see the paper by yourself, I think you will get more clarity. So please do these two things. It might take your 5 hours, 10 hours, but that will save you, that will help you save you another 100 hours, and which you will be otherwise spending on reading something totally irrelevant. Now, how to prepare for ESI? First, let me talk about the pattern. So, your ESI paper is worth 100 marks, out of which 50 marks is descriptive and 50 marks is objective. That is 50 number के MCQs आएंगे, 50 number के descriptive questions आएंगे, which are to be written using keyboard. They are not pen and paper based. So, this is the pattern. So, this actually gives an idea that whenever we are preparing for this exam, this subject, we have to prepare it from two different orientations, that is objective and descriptive. And this is your syllabus. Now this is, I would say, standard syllabus, but one thing which you must try to understand, most of the people have this notion that ESI is economics. अगर आप किसी से पूछेंगे आरबीआई में फाइनेंस मैनेजमेंट के साथ कौन सा सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स. दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स, दिस इज E for economics and SI for social issues. So this is the kind of a combination of two subjects. और एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम वेटेज सेम ही रहता है, मतलब इसका अराउंड 50 और इसका सोशल इश्यूज का अराउंड 50. एंड इफ यू सी द सिलेबस, इट्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 मॉड्यूल्स. फर्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकंड इज इंडियन इकोनॉमी, थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन, and the fourth one is social structure in India, which is actually this social issues part that I have been talking about. तो फर्स्ट यूनिट में इट्स मोर अबाउट जीडीपी, एनएनपी, एनवायरमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन एंड ऑल दैट. Second unit is basically about economic history of India, monetary policy, fiscal policy, economic survey, union budget, Indian financial markets, all that. Third unit is about globalization, how Indian economy is related to outside world, balance of payments, export import policy, regional economic cooperation, how IMF and World Bank act to establish this regional economic cooperation. So everything related to globalization would be studied in the third unit. And fourth unit is about social structure in India, which is about social issues such as gender disparity, urbanization, problem of migration, multiculturalism, all that. So this is just a very high level overview, and I want to tell you again that this is not economics, this is a mixture of economics and social issues. Now this was about the pattern. And one more thing in the syllabus that I want to tell you, which most of the people misses, that though this is a very official syllabus that I have told you on this screen, but if you go to the RBI notification, there below this syllabus they mentioned suggested reference material, and under this suggested reference material they have mentioned that you should be reading prominent financial newspapers. That's why I told you to read newspapers regularly in the previous slides. Then they have mentioned some reports: World Development Report, Economic Survey of India, RBI annual report, reports on trends and progress of banking in India, report on currency and finance, IMF World Economic Outlook. Now these reports are very very important because now they are directly or indirectly part of your syllabus. Though they have mentioned it under suggested reference material, but this actually becomes the scope of your preparation. And if you really see the past year papers, questions, descriptive, yes, descriptive, 15 marker questions have been asked from these reports. World Economic Outlook or World Development Report, Currency and Finance Report, descriptive questions have been asked from these reports. तो हम सिर्फ इस सिलेबस पे कंसंट्रेट ना करें, rather this indirect syllabus which is mentioned in suggested reference material, especially these reports are very very important. ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है. अब ESI की ओवरऑल तैयारी कैसे करें?
नाउ फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दी वेटेज. ईएसआई के पेपर में स्टैटिक और करंट का बहुत ही स्क्यूड वेटेज है. इट्स मोर no on the side of current. So current will contribute around 75 marks overall in your paper, whereas static might just contribute 25 marks. This is not a rule, this is based upon the previous year analysis. And अगर मैं इस चीज को आपको थोड़ा और ब्रेकअप करके दिखाऊं into objective and descriptive, so out of 100 marks your objective exam is 50 marks, subjective or descriptive exam is 50 marks. Out of this objective 50 marks, your static normally has a very less weightage, around 5 to 7 marks. Current will have a weightage of around 42 to 45 marks. Whereas in the subjective exam or subjective questions, static भी आएंगे एक दो questions, बाकी एक दो questions current आएंगे, so we can make it 20-30. So that's why I told you current का total weightage है 45 plus 30, that is 75, and static का total weightage है 5 plus 20, 25. राइट. सो इससे थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी कि पेपर में कितना करंट आएगा, कितना स्टैटिक आएगा, कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना डिस्क्रिप्टिव आएगा. सबसे पहले इससे शुरू करते हैं. ये वाला, ये जो स्टैटिक पार्ट है इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट, हाउ टू कवर दिस. नाउ now the syllabus of ESI is pretty huge, as I showed you in the last screens, right? But if you analyze the previous year papers, we have done this analysis almost till 2022 paper. ठीक है. तो आप देखेंगे देर आर सर्टन चैप्टर्स जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं. मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ हो गया, पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. तो ये 7 चैप्टर्स हैं विच इन माय ओपिनियन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दे आर द कोर ऑफ ESI, because here is something that you want to understand. If I talk about other chapters, they would be a cakewalk in comparison to this. तो आपको ये 7-8 चैप्टर्स हैं जो बहुत अच्छे से करने हैं, राइट? द वन विच आर हाईलाइटेड हियर इन आइदर ग्रीन और ऑरेंज. तो आप ये प्लीज नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके. Rest of the chapters I am not asking you to leave, because anyways they can be even asked in the descriptive part, which I am going to talk just as a next point. तो ये स्टैटिक का मैंने आपको बता दिया. एंड डू नॉट थिंक दैट स्टैटिक सिर्फ 5 नंबर का आएगा, देयरफॉर आई लीव इट रेदर देन रीडिंग दिस 7-8 चैप्टर्स. नो, बिकॉज विदाउट reading or understanding the static part, you will not be able to understand even the current affairs. And moreover, in your interview, if you do not understand the static part of economics, I'm pretty sure that you will be just blank in the interview with it, now that without having understanding of these topics. बाकी जो आपका सब्जेक्टिव में स्टैटिक है, सब्जेक्टिव पार्ट में जो आपका स्टैटिक आएगा, ठीक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे. अभी हम करंट की बात करेंगे, ये वाले करंट की. सो आउट ऑफ 50 करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा है. इट्स अराउंड 45 मार्क्स, राइट? नाउ इट कैन बी 42, 43. इट्स नॉट एन एग्जैक्ट नंबर दैट आई एम टेलिंग यू. और करंट अफेयर्स में दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में. द फर्स्ट वन इज रिपोर्ट्स एंड द अनदर वन इज स्कीम्स. अब रिपोर्ट्स क्या होती हैं? सी वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनिसेफ, OECD, they keep on releasing reports in different areas, and these kind of reports are asked in your paper. The first priority should be to cover the reports which are related to your syllabus. For example, there is a report on gender issues, there is a report on employment, there is a report on environment, there is a report on poverty. All these reports which somehow relate to your syllabus becomes very, very important. That should be your first priority. Do not read reports randomly. Map it with your syllabus. The second thing which you need to understand is that even if you are reading reports related to your syllabus, you should mainly focus on the reports जो कि national और international level पे बड़ी बड़ी bodies हैं, उन्होंने release की हैं. For example, at an international level, I would say the big bodies can be IMF, World Bank, UNICEF, OECD, UNESCO, Asian Development Bank, United Nations, WTO, all that. Whereas on national level, RBI, one of the most important body for your RBI Grade B exam, then SEBI, then Ministry of Finance, then Niti Aayog, all that. तो इनकी रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है. एंड व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द रिपोर्ट्स रिलीज बाय इंटरनेशनल और नेशनल बॉडीज, डू नॉट ट्राई टू रीड इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स. आप IMF की वेबसाइट पे कोई भी रिपोर्ट उठाएंगे वो 200-300 पन्नों की होगी, वहां से पढ़ना टाइम वेस्ट है. रेदर आप उसी रिपोर्ट को सर्च कीजिए गूगल पे, दैट गिव मी अ लिंक in some newspaper like Hindu or Live Mint
or say Economic Times or Times of India. So whatever report you come to know that has been released, आपको कहीं से भी पता चले, आप उस रिपोर्ट को गूगल पे जाकर किसी पर्टिकुलर एक या दो न्यूज़पेपर्स में सर्च कीजिए, एंड वॉट एवर समरी दैट इज गिवन बाय द न्यूज़पेपर्स देयर, you should only be concentrating on that. That should be, no, I would say, a comprehensive coverage which can help you answer most of the questions in the exam related to reports. तो बहुत ही एक एक सिंपल स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, इसको अपनाइएगा. आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस इन द रिपोर्ट्स. बट even important in the reports, in the current affairs part of ESI would be schemes. तो schemes भी बहुत सारी हैं. Your first priority should be to read schemes which are related to your syllabus. Gender issues से related बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना. तो इस तरह से you will get different schemes related to different parts of your syllabus. That should be your first priority. Moreover, the schemes that you should be reading, now there would be thousands of schemes where you should be focusing on. See, you should be focusing on the schemes which are in news 6 to 9 months before your exam. तो कोई भी स्कीम न्यूज में है, न्यूज में कब होगी? या तो वो न्यू रिलीज हुई है, या वो अपडेट हुई है, पुरानी स्कीम है लेकिन अपडेट हुई है, या पुरानी स्कीम है अपडेट नहीं हुई पर उस पर कुछ एक्टिविटी हुई है, उस स्कीम को कोई अवार्ड मिला है, उस स्कीम का कोई क्रिटिसिज्म हुआ है, कुछ भी है. सो फॉर वॉट एवर रीजन, इफ अ स्कीम इज इन न्यूज in the past 6 to 9 months preceding your exam, that scheme becomes 3 times more probable to be asked in your exam. और जो आपको ये पता लगाना है कि कौन सी स्कीम न्यूज़ पे है, वो आप ऑब्वियसली किसी न्यूज़पेपर से पता लगाएंगे. तो बेस्ट न्यूज़पेपर फॉर दैट इज हिंदू, और एक वेबसाइट है PIB जिसपे ऑलमोस्ट एवरी स्कीम से रिलेटेड न्यूज़ वो कवर करते रहते हैं. यू गेट टू नो दैट विच ऑल स्कीम्स आर इन न्यूज़, which are being released newly, which are being updated, or which are having certain activity on them. तो इस तरह से आपको स्कीम्स को फिल्टर करके पढ़ना है. देयर इज नो पॉइंट इन रीडिंग अ कंपाइलेशन ऑफ स्कीम्स व्हिच इज कंटेनिंग 1000 स्कीम्स. दैट आई वुड से इज जस्ट अ टाइम वेस्ट. सो दैट वाज अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट. ठीक है, करंट पे ज्यादा फोकस करना है बट स्टैटिक भी छोड़ना नहीं है. नाउ मूविंग ऑन टू द सब्जेक्टिव पार्ट हियर. तो सब्जेक्टिव पार्ट में, स्टैटिक पार्ट में, अगेन इन दी ऑब्जेक्टिव पार्ट आई टोल्ड यू कि आपको कुछ ये वाले चैप्टर्स पे फोकस करना है, राइट? मैंने यही चैप्टर्स आपको दिखाए थे, बट the other chapters are not to be left because descriptive में they can ask you question from anywhere, so you would have to do even the remaining chapters, but I would say they would be easy. Once you read these chapters, the remaining chapters are going to be damn easy. तो यहाँ पे फोकस करना है स्टैटिक पार्ट में. सारे चैप्टर्स को एक बार रीडिंग दे लेनी है सो दैट यू आर एबल टू आंसर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर. और जो करंट की बात करें डिस्क्रिप्टिव में, तो यहाँ पे सी करंट आर मेनली बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स. तो जो भी रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, जो आपके सिलेबस में थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, एनुअल रिपोर्ट ऑफ RBI, उनको आप अच्छे से पढ़िए. एंड जो भी करंट इश्यूज हैं, ठीक है, कोई चीज इश्यूज न्यूज में रहती है, जेंडर इनइक्वालिटी, माइग्रेशन, ऑल दैट, उस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसके लिए यू शुड बी रीडिंग एडिटोरियल्स. किसमें? हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पढ़िए, वंस अ वीक और थ्राइस अ वीक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी करंट इश्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट देम ओनली इफ यू प्रैक्टिस एडिटोरियल्स. बाकी डिस्क्रिप्टिव के कुछ स्टैटिक क्वेश्चन जो यहां से मैंने बताया 20 नंबर में, वो कुछ ऐसे आते हैं. डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसी एंड मेंशन इन ब्रीफ एटलीस्ट 8 मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है. What is meant by economic reforms? Explain all type of reforms in economic policies of India from 1990s till now. ये भी बहुत इजी है, डायरेक्ट है. और स्टैटिक और डायनेमिक का थोड़ा मिक्स आ सकता है. दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज इन इंडिया. नाउ दिस इज नॉट अ बुकिश क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट थ्योरेटिकल क्वेश्चन. ये थोड़ा सा आपकी मतलब थ्योरी प्लस आपका डायनामिज्म जो आपने इधर उधर से पढ़ के चीजें जानी है, उससे आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे. देन देयर आर टोटली करंट बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पे UNDP की जेंडर इक्वालिटी स्ट्रैटेजी पे आया है. अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा आप कर ही नहीं पाएंगे. जैसे एक और आया है, फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पे क्वेश्चन आया है, ये भी अगर आपने पढ़ा नहीं है आप कर ही नहीं पाएंगे.
फिर करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट पे आया है, ये भी आप कर ही नहीं पाएंगे अगर आपने पढ़ा नहीं है. सो द क्वेश्चंस कैन बी स्टैटिक, दे कैन बी करंट बेस्ड, यू शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ. और ये रिपोर्ट्स को अच्छे से कर लीजिए करंट बेस्ड के लिए, और एडिटोरियल्स को बहुत अच्छे से कर लीजिए, वहां से भी काफी करंट इश्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. And one or two points that I want to tell you about answer writing is that please develop recall power, because in descriptive writing there are no options or no hints given to you. You just have to recall the points. And to recall the points, I would say that whatever current issues you are reading, you try to make a topic wise fodder on them. For example, on health, you can write now whatever recent figures are, some reports that have been released के by KPMG, 15 फाइनेंस कमीशन क्या कह रहा है. सो ऐसे जो भी पॉइंटर्स हैं, स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनको आप ऐसे लिखते रहिए टॉपिक वाइज. जस्ट 5 points I would say on each of these topics that are in your syllabus are going to be sufficient, and then you need to learn to use these points in your answer. और एक आंसर डेली प्रैक्टिस करें, डेली नहीं कर सकते तो 3 times a week कर लें. आंसर राइटिंग सिर्फ नॉलेज नहीं है, इट्स अ स्किल, इट्स अ स्किल. ठीक है. बाकी सोर्सेज की बात करूं तो ESI स्टैटिक, दो इट इज नॉट हैविंग अ ह्यूज वेटेज, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. रमेश सिंह पढ़िए, इंडियन इकोनॉमी, अच्छी किताब है, अच्छे से समझ आ जाएगा. सोशल इश्यूज के लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ज्यादा कीड़ा है तो रामहूजा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सोशल इश्यूज से ज्यादातर करंट बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं. ESI करंट अफेयर्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए हिंदू पढ़िए. जो भी नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होंगी वो हिंदू में जरूर कवर रहती हैं. और स्कीम्स के लिए आप PIB पढ़िए. PIB पे ट्रैक कीजिए कौन सी स्कीम्स न्यूज़ में है एग्जाम से 6 से 9 महीने पहले. दैट शुड बी योर प्राइमरी टारगेट. बाकी ये एक स्टडी प्लान है जो आप फॉलो कर सकते हैं, दो यू कैन कस्टमाइज इट एज पर योर नीड्स. इन माय ओपिनियन फर्स्ट 20 days, अगर आप 50 days का स्टडी प्लान बना रहे हैं, स्टडिंग 4 hours a day, first 20 days you should be focusing on important chapters of ESI. ठीक है. तो ये 8 चैप्टर्स आपको 20 दिन में करने हैं, आराम से करने हैं, अच्छे से करने हैं. और डेली 3 स्कीम्स पढ़िए स्टार्टिंग फ्रॉम फेब, मतलब फेब मंथ की जो स्कीम्स हैं इन न्यूज़ वो पढ़िए. हर वीक 2-3 रिपोर्ट्स पढ़िए, और एडिटोरियल रीडिंग कीजिए. ठीक है. ऑल्टरनेट डे और आंसर राइटिंग, थ्राइस अ वीक मतलब आपको एडिटोरियल और आंसर राइटिंग करना है. तो इतना मैनेजेबल है मेरे हिसाब से. अगर इन सारी चीज़ों को चलाएंगे तो बाय आई थिंक एंड ऑफ 50 days आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा. डे 21 to 50 में आप ESI के रिमेनिंग चैप्टर्स कीजिए, एंड आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो इनटू टू मच डेप्थ ऑफ द अदर चैप्टर्स, उनको थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा. बाकी स्कीम्स हम 3 पढ़ेंगे डेली, रिपोर्ट्स हम वीकली 2 या 3 रिपोर्ट्स ज़्यादा आती नहीं है, अगर आप 2-2 रिपोर्ट्स भी वीकली पढ़ेंगे आई थिंक यू विल बी विद द पेस. और एडिटोरियल रीडिंग और आंसर राइटिंग कीजिए ऑल्टरनेट डे. ये 50 days का प्लान है. इन 50 days में आपका सारा स्टैटिक कवर हो जाएगा, आपकी ऑलमोस्ट 150 स्कीम्स कवर हो जाएंगी डूइंग 3 schemes a डे. और आंसर राइटिंग भी आप कम से कम अगर ऑल्टरनेट डे लिखेंगे यू वुड राइट 25 to 30 आंसर्स. 50 दिन के बाद क्या, जैसे आपने 15 मार्च तक ये प्लान फॉलो किया, 15 अप्रैल तक, और उसके बाद क्या, उसके बाद डेली एक स्कीम पढ़ते रहिए. इतना काफ़ी है, बिकॉज यू वुड हैव ऑलरेडी डन 150 स्कीम्स. और ये आंसर राइटिंग जरूर करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब स्टैटिक में आपका वीक होना चलेगा, बट आंसर राइटिंग और एडिटोरियल मतलब करंट इश्यूज में आप पीछे नहीं हट सकते हैं. दैट इज द क्रिटिकल एरिया, दैट इज द क्रिटिकल फेज विच यू शेल बी मास्टरिंग. आई होप आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड आपको एक आइडिया मिल रहा है कि कैसे इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है. बाकी ये हमारी RBI ग्रेड बी मैनेजर गाइड है, विच इज कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू RBI एज एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोशंस, हायरार्की, सैलरी, इनहैंस सैलरी एंड ऑल दैट. विद रिस्पेक्ट टू RBI ग्रेड बी एग्जाम प्रिपरेशन, आपको इसमें 3 चीजें मिलेंगी जो बहुत यूजफुल है. पहली है RBI ग्रेड बी का डिटेल्ड सिलेबस, RBI ग्रेड बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और RBI ग्रेड बी एग्जाम के लिए जो भी बुक लिस्ट चाहिए, वेबसाइट चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी. एंड दीज आर अवर कोर्सेज, गोल्ड पैक एंड सिल्वर पैक. गोल्ड पैक इज मेनली फॉर नो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, जहां पे फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ मिलता है. सिल्वर पैक इज मेनली फॉर फेज 2 प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू, बट यहाँ पे फेज 1 की करंट अफेयर्स आपको इसमें भी मिलेंगी. ठीक है. एंड यू कैन डाउनलोड अ सैंपल मटेरियल बाय गोइंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लिंक. वहां पे लिंक पर क्लिक कीजिए और सैंपल मटेरियल डाउनलोड कीजिए. और ये गाइड बुक भी जो मैंने आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले,
ये गाइड बुक भी आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, एक लिंक है, एंड दिस इज एंटायरली फ्री। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है इसको डाउनलोड करने का, आप इसको आराम से पढ़िए। आई एम श्योर यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो शायद आपको 10 अलग अलग वीडियोस या वेबसाइट्स पे जाकर भी नहीं मिलेगी। तो आज ही इसको डाउनलोड कीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।